Good morning and Jai Hind, my dear students. My dear kids, today we are going to revise the most important chapter, that is Principle of Inheritance and Variation. Because you know that from 10th of August, we are just going to face the unit test second. So in unit test second, the syllabus is chapter number 5, Principle of Inheritance and Variation, chapter number 6, Molecular Basis of Inheritance, as well as Human Health and Disease. So three chapters are the syllabus of unit test 2, which are the Principle of Inheritance and Variation. ध्यान से सुनिएगा, यूनिट टेस्ट 2 का तीन चैप्टर सिलेबस है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेशन एंड वेरिएशन, inheritance and variation, then molecular basis of inheritance, and then the evolution chapter has been eliminated by CBSE board in this year due to COVID-19. So the next chapter is human health and disease. हम लोग पढ़ेंगे evolution भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन पहले जो मेन सिलेबस है हम लोग उस पर फोकस कर रहे हैं और इन तीन चैप्टर्स को हम लोगों ने पढ़ा है फ्रॉम 6 ऑफ जुलाई टू 31 ऑफ जुलाई तक ये पढ़ रहे हैं। तो ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये तीन चैप्टर बच्चों हम लोग के कोर्स में है, सिलेबस में है, जो है यूनिट टेस्ट 2 के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपके बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए। सो प्लीज मेक योर फुल ऑफ कंसंट्रेशन बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू रिवाइज द होल fifth chapter, that is principle of inheritance and variation. So children, you are knowing very well that genes are the unit of heredity, that is the structural and functional unit of heredity, and heredity is the branch of science which deals about genetics, जो हमें genetics के बारे में समझाता है किस तरीके से माता पिता से कैरेक्टर्स अगली पीढ़ी में जाते हैं। और मेंडल के समय में जीन्स की खोज हो रही थी, आपको पता ही है, तो मेंडल ने जीन्स के जगह पर एक अल्टरनेट को लिया था, दैट इज एलील्स। सो एलील्स आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स, एंड एलील्स आर ऑफ थ्री टाइप्स चिल्ड्रन, व्हिच आर होमोजाइगस डोमिनेंट एलील, heterozygous dominant allele, and homozygous recessive allele. You are seeing here homozygous dominant, heterozygous dominant, and homozygous recessive. Now see here the two important classes of genetics. बच्चों यह ऐसा चैप्टर है जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अभी आपको जब मैं ये रिवाइज करवा रहा हूँ तो जिन लोगों का ये चैप्टर छूटा भी होगा उनका भी ये कवर हो जाएगा, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। जिनको थोड़ा समझ में आया होगा उनका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जेनेटिक्स में आप लोग की प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ चैप्टर, ताकि इसमें कोई कमी ना रह जाए। आप जानते ही हैं यह 18 नंबर 18 मार्क्स कैरी करेंगे ये दोनों चैप्टर्स बच्चों। So now come again to discuss about the two important classes of genetics, which are test class and back class. Children, the cross between F1 progeny, F1 offsprings, and either of the parent is called as back class. Dominant या recessive, किसी भी पेरेंट से अगर F1 प्रोजनी का क्रॉस होगा तो उसको बैक क्रॉस कहेंगे, और जबकि F1 प्रोजनी का क्रॉस अगर रिसेसिव पेरेंट से कराया जाएगा then it is said to be a test cross. तो इससे क्या समझे आप कि टेस्ट क्रॉस इज अ काइंड ऑफ बैक क्रॉस, क्योंकि टेस्ट क्रॉस में भी रिसेसिव पेरेंट से तो करा ही रहे हैं, आइदर आप पेरेंट से कराने को बैक क्रॉस और रिसेसिव पेरेंट से अपन प्रोजनी का क्रॉस कराया जाएगा तो उसको टेस्ट क्रॉस कहा जाएगा बच्चों। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, थोड़ा सा मैं स्पीड में ही रखूंगा चीजों को, क्योंकि आप इसको पहले पढ़ चुके हैं, एंड राइट नाउ आई एम जस्ट रिवाइजिंग द होल चैप्टर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन once again for your preparation of UT2. So see here the monohybrid cross, the cross between two plants having one pair of opposite character. You are seeing here the pure green and pure yellow. So the characters are totally dominant and totally recessive. That is pure dominant and pure recessive. The cross is said to be as monohybrid cross. Now you know very well that dihybrid cross, the cross between two plants having two pairs of opposite character, like you are seeing here round seed, yellow seed, dominant characters, and wrinkled seed, green seed, recessive character. तो ये wrinkled और green seed, ये round और yellow seed, ये dominant और ये recessive। चूंकि यहाँ पर दो पेयर है अपोजिट कैरेक्टर्स के, इसीलिए इस क्रॉस को कहेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। नाउ discuss the Mendel's law. You know Mendel, Gregor von Mendel, father of genetics.
इन्होंने जेनेटिक्स के प्रयोग किए पाइजम सटाइवम के ऊपर, गार्डन पी के ऊपर बच्चों इन्होंने जेनेटिक्स का प्रयोग किया अपने चर्च की गार्डन में, और वहां पर जो है इन्होंने फाइनली जेनेटिक्स के नियमों को खोजा, और लेटर ऑन ही वाज ऑनर्ड एज फादर ऑफ genetics. So Mendel proposed three laws: law of dominance, law of segregation, and law of independent assortment. मेंडल ने तीन नियम दिए बच्चों, ध्यान से और जल्दी जल्दी इनको समझने की कोशिश करिएगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, इसमें मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया, और F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट ट्रेट था उसने रिसेसिव ट्रेट को सप्रेस कर दिया और अपने ही अपीयर हो गया, इसीलिए इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा गया बच्चों। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है पृथककरण का नियम, यानी जिसमें जो कैरेक्टर्स जो ट्रेट्स हैं, जब F1 प्रोजनी को आपस में क्रॉस कराया गया तो अगली जनरेशन को क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन, और F2 जनरेशन में जो कैरेक्टर्स थे जो ट्रेट्स थे वो एक फिक्स्ड रेशियो में सेग्रीगेट हो गए, इसीलिए इसको कहा गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ देखिए बच्चों, F1 प्रोजनी को आपस में क्रॉस कराने पर F2 जनरेशन में ये आपस में सेग्रीगेट हो गए, एक प्योर पर्पल मतलब वही प्योर रेड, और दो हाइब्रिड पर्पल और एक प्योर व्हाइट। तो जीनोटिपिक रेशियो इनका आया 1:2:1, और जबकि फिनोटिपिक रेशियो इनका आया 3:1। So this one is the law of segregation. Now see the third law, which is the most important law, that is law of independent assortment. और law of independent assortment में बच्चों, when Mendel made the dihybrid cross between two plants of Pygium sativum, then in F1 generation, तो hybrid dominant characters were appeared according to law of dominance. But in F2 generation, when F1 progenies are intercrossed, then in F2 generation, the traits, the characters were independently assorted into the fixed ratio of 9:3:3:1, and that's why this law is said to be as law of independent assortment. देखिए बच्चों यहाँ पर दो जोड़ी मतलब कि चार, राउंड येलो राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो रिंकल्ड ग्रीन, राउंड येलो राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो रिंकल्ड ग्रीन, और इसमें जब क्रॉस कराया गया तो आप देख रहे हैं चार कैरेक्टर इन्होंने लिया था। राउंड येलो कुल 9 मिले, राउंड ग्रीन कुल 3 मिले, रिंकल्ड येलो कुल 3 और रिंकल्ड ग्रीन कुल 1 मिले, और इस तरीके से जो मेंडल को रेशियो मिला फिनोटिपिकली और 9:3:3:1 मिला बच्चों। तो आप देख रहे हैं when Mendel made the dihybrid cross between two plants of Pygium sativum, the garden pea, then in F1 generation the dominant character suppresses the recessive one, and due to which the hybrid dominant characters were appeared. But when these hybrid dominant F1 progenies were intercrossed, then in F2 generation the traits, the characters were assorted independently into the fixed ratio of 9:3:3:1. So this one is law of independent assortment. ये तीन नियम मेंडल ने दिए थे बच्चों। और अब देखिए आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस आप देख रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस यह कार्ल कोरेंस ने दिया। आप जानते हैं कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी व्रीज और शेरमार्क, इन तीन लोगों ने मेंडल के नियमों की रीडिस्कवरी भी की थी, और कार्ल कोरेंस ने ही इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिया। मिराबिलिस जलापा प्लांट के रेड और व्हाइट प्लांट्स में जब क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में नाइदर रेड नॉर व्हाइट कलर्ड फ्लावर्स वर ऑब्टेन, इन स्पाइट ऑफ इट न्यू पिंकिश कलर फ्लावर्स वर ऑब्टेन, एंड दैट्स व्हाई दिस लॉ वाज सेड टू बी एज लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और अब कोडोमिनेंस में देख रहे हैं आप, जबकि दोनों एलेलिक रिलेशनशिप जो है फिनोटिपिकली जो है एक्सप्रेस्ड हो जाए एक हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन में अगले जनरेशन में, तो उसको कोडोमिनेंस कहते हैं बच्चों। एबी ब्लड ग्रुप में देखा था आपने IA IB, और दोनों ही डोमिनेंट हो जाते हैं एलील, इसीलिए एबी ब्लड ग्रुप वालों में A और B दोनों ही एंटीजन पाए जाते हैं, और जबकि एंटीबॉडी कोई भी नहीं पाई जाती है। तो दिस वन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस चिल्ड्रन। नाउ सी हियर द मल्टीपल एलील्स, as its name says that when the particular trait or character is executed by more than one pair of alleles, then it is said to be as multiple alleles, and best example is human ABO blood group, because it is designated by 3 alleles which are IA, IB and small I or IO। small I इसलिए लिखते हैं बच्चों इसको क्योंकि यह रिसेसिव है। तो देखिए A ब्लड ग्रुप IA IA या IA स्मॉल I हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन,
B blood group, IB or IB small I. This one is homozygotic condition, this one is heterozygotic condition. AB blood group जिसको आपने कोडोमिनेंस में देखा था बच्चों, IA, IB, A और B दोनों एंटीजन पाए जाएंगे AB blood group, and here you are seeing O blood group, small I both are the recessive alleles. That's why in O blood group there is no any antigens, but both the antibodies are present and it is considered as universal donor. So children, you are seeing here the multiple alleles, the genetical phenomena in which the particular trait or character is executed by more than one pair of alleles. And now see here problem, मैंने इसको प्रॉब्लम को भी आपको करवाया था क्लासेस में कि किस तरीके से जो है एक मदर और फादर का पर्टिकुलर कैरेक्टर दिया रहेगा हेट्रोजाइगोटिक, मदर जो है हेट्रोजाइगोटिक भी है टाइप बी, मतलब कि आई बी और स्मॉल आई, और फादर भी जो है हेट्रोजाइगोटिक फॉर टाइप ए है, तो आप स्प्रिंग्स में क्या परसेंटेज है चांसेस के। तो यह प्रॉब्लम इस तरीके के और भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स किताबों में से देखकर आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और जहां पे भी ना आए उसको पिछड़ा टाइम में पूछने का भी प्रयास करिए। नाउ सी हियर one gene and performing more than one trait। अब देखिए मल्टीपल एलील वाली बात बदल गई, उल्टी हो गई, और तब इसको कहा जाएगा प्लियोट्रॉपिज्म। प्लियोट्रॉपिज्म में जीन एक ही रहेगा और जो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को डेजिग्नेट कर रहे होंगे बच्चों। देखिएगा प्लियोट्रॉपिज्म इज डिफाइंड एज व्हेन वन जीन इन्फ्लुएंस मल्टीपल अनरिलेटेड फिनोटाइपिक ट्रेट। जब एक ही जीन है लेकिन मल्टीपल अनरिलेटेड फिनोटाइपिक ट्रेट्स को ये डिजिग्नेट कर रहा होगा, डिफाइन कर रहा होगा, तब उस फिनोमेना को बोलेंगे प्लियोट्रॉपिज्म। प्लियोट्रॉपी डिस्क्राइब द जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ सिंगल जीन ऑन मल्टीपल फिनोटाइपिक ट्रेट। एक सिंगल जीन है जो मल्टीपल फिनोटाइपिक ट्रेट अनरिलेटेड ट्रेट्स को डेजिग्नेट कर रहा होता है। एंड क्लासिकल एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपिज्म इज ह्यूमन डिजीज फेनाइल कीटोनुरिया। फेनाइल कीटोनुरिया बच्चों, जिसमें फेनाइल एलेनिन अमीनो एसिड फेनाइल पायरुविक एसिड में बदल जाता है और हमारे नी पेटला और ब्रेन रीजन में यह अकुमुलेट होता रहता है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने मेंडल्स लॉ वगैरह की बातें की थी इस चैप्टर में, और इसके बाद अगर हम लोग इस चैप्टर के और इम्पोर्टेंट चीजों को देखें तो वह था म्यूटेशन। तो म्यूटेशन, चूंकि मेंडल्स लॉ के बाद जीन्स और एलील्स को पढ़ लेने के बाद लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, प्लियोट्रॉपिज्म और कोडोमिनेंस को पढ़ लेने के बाद जो मेन जेनेटिक्स का जो मेन फीचर था वह है म्यूटेशन। क्योंकि आप जानते हैं म्यूटेशन इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। म्यूटेशन के बेसिस पर ही इवोल्यूशन होता है बच्चों, बिकॉज इट इज सडन एंड स्पॉन्टेनियस चेंज इन द लेवल ऑफ जीनोम व्हिच बिकम्स इनहेरिटेबल। यह जीनोम के लेवल पर, जीन्स, क्रोमोसोम्स और डीएनए के लेवल पे होने वाला अचानक परिवर्तन है जो अगली पीढ़ी में चला जाता है, इसको म्यूटेशन कहा जाता है। एंड यू नो वेरी वेल दैट म्यूटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय ह्यूगो डिब्रीज। म्यूटेशन को हॉलैंड के साइंटिस्ट ह्यूगो डिब्रीज ने ढूंढा एक प्लांट के ऊपर जिसका नाम था ओइनोथेरा लैमार्कियाना। ओइनोथेरा लैमार्कियाना दैट इज वेल नोन एज इवनिंग प्रिमरोज। इसको इवनिंग प्रिमरोज भी कहा जाता है बच्चों। सो म्यूटेशन is the sudden or spontaneous change in the level of genome which become inheritable, and you are seeing here mutation। देखिएगा mutation was first of all recognized by Hugo de Vries in 1901 in evening primrose plant। scientific name लिखा हुआ है ओइनोथेरा लैमार्कियाना। म्यूटेशन एक सडन और स्पॉन्टेनियस चेंज है जीनोम में which becomes inheritable in the next generation, and mutation is the basis of evolution। चिल्ड्रन ध्यान दीजिएगा, म्यूटेशन इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, यह इवोल्यूशन का आधार भी है। म्यूटेशन आर इनहेरिटेबल चेंजेस इन द डीएनए सीक्वेंसेस। दे कैन रिजल्ट फ्रॉम द रेप्लिकेशन एरर्स, चाहे रेप्लिकेशन में कुछ एरर हो जाए, फ्रॉम डैमेज टू द डीएनए और फ्रॉम एरर्स इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिपेयर ऑफ डैमेज, या डैमेज की रिपेयरिंग के दौरान। म्यूटेशन दैट आर चेंजेस ऑफ सिंगल बेस पेयर्स आर कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। और चूंकि जब जीन्स के लेवल में होगा या सिंगल बेस पेयर मतलब एक जीन हो जाएंगे, जीन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी यू नो, तो उसको क्या कहेंगे, पॉइंट म्यूटेशन। क्योंकि जीन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रहते हैं जिसको लोकस या लोसाई कहते हैं, तो जीन्स में के लेवल पे होने वाले म्यूटेशन को बच्चों पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। एंड इसके बहुत से कॉजेज होते हैं, इसके कॉजेज स्पॉन्टेनियस या इंड्यूस्ड हो सकते हैं, इनको म्यूटाजीन्स कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं म्यूटाजीन्स आर द सब्सटेंसेस
causing mutation. And mutagens are of two types, children. Physical mutagens are X-rays, gamma rays, cosmic rays, and chemical mutagens are dimethyl ether and diethyl ether. And types of mutation, if we talk about, so mutation is of three types: chromosomal mutation, gene mutation, and frame shift mutation. अगर क्रोमोजोम्स के नंबर में जो है इंक्रीजमेंट या डिक्रीमेंट होता है तो उसको क्रोमोजोमल म्यूटेशन कहते हैं बच्चों। उसमें भी आप जानते हैं अगर 1 से लेकर 22 जोड़े तक में होगा तो दैट इज सेड टू बी एज ऑटोसोमल म्यूटेशन, और 23वें जोड़े में होगा तो दैट इज सेड टू बी एज सेक्स क्रोमोजोमल म्यूटेशन. And if it occurs in the base pair, single base pair gene, that is gene mutation or point mutation. And if the particular codon has been shifted, then from the messenger RNA released, then it is said to be a frame shift mutation. So children, if we talk about the chromosomal mutation, it is of two types, which is autosomal mutation and sex chromosomal mutation. आप जानते हैं हमारे जीनोम में 22 पेयर्स ऑटोसोम्स या सोमेटिक क्रोमोसोम्स होते हैं जो हमारी सोमेटिक चीजों को डिजिग्नेट करते हैं, निर्धारित करते हैं. तो और 22 पेयर्स क्रोमोसोम्स को बच्चों ऑटोसोम या सोमेटिक क्रोमोसोम कहा जाता है. और उसमें कोई भी अगर चेंज होता है, एब्नॉर्मेलिटी जाती है, तो दैट इज सेड टू बी एज ऑटोसोमल म्यूटेशन. और हमारा 23rd पेयर दैट इज द सेक्स क्रोमोसोम, XX फीमेल, XY मेल, तो दैट इज द सेक्स क्रोमोसोम. और उसमें अगर कुछ भी चेंजेस होती है, एब्नॉर्मलिटीज होती है, तो दैट इज सेक्स क्रोमोसोमल म्यूटेशन. सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोसोमल म्यूटेशन चिल्ड्रन. पहले हम लोग ऑटोसोमल म्यूटेशन की बात करेंगे जिसमें 1 से लेके 22 तक जोड़े में जो क्रोमोसोम्स की पेयर्स हैं उसमें कुछ भी एब्नॉर्मलिटीज या सडन स्पॉन्टेनियस चेंज होता है. और इसमें 4 तरीके के ऑटोसोमल म्यूटेशन होते हैं बच्चों: डाउन सिंड्रोम, पेटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और क्राई-डू-चैट या कैट-क्राई सिंड्रोम. और पिछले क्लासेस में हम लोगों ने चारों ही सिंड्रोम के बारे में डिस्कस किया है. बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली डाउन सिंड्रोम बिकॉज दिस इज इन आवर कोर्स. तो यहाँ पर चूंकि हम लोग रिकैप्चुलेट कर रहे हैं अभी UT2 के लिए, तो देखेंगे सबको ही हम लोग. क्योंकि डाउन सिंड्रोम आप जानते हैं ट्राइसोमी 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम में, पेटाउ सिंड्रोम 13th पेयर ऑफ क्रोमोसोम में ट्राइसोमी, एडवर्ड सिंड्रोम 18th पेयर ऑफ क्रोमोसोम में ट्राइसोमी, और क्राई-डू-चैट या कैट-क्राई सिंड्रोम इन 5th पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मोनोसोमी, दैट इज 2n-1. एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं बच्चों, इसको ध्यान से समझें. आप नोट तो आप पीछे कर ही चुके हैं. डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी इन 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज 2n+1. पेटाउ सिंड्रोम ट्राइसोमी 2n+1 इन 13th पेयर ऑफ क्रोमोसोम. एडवर्ड सिंड्रोम trisomy 2n+1 in 18th pair of chromosome, and cry-do-chat or cat-cry syndrome monosomy in 5th pair of chromosome. So here you are seeing the Down syndrome, मंगोलिज्म. डाउन सिंड्रोम को बच्चों कॉमनली क्या कहा जाता है? मंगोलिज्म, क्योंकि इसमें फेस मंगोलों के तरीके से हो जाता है, इसीलिए जो है इस बीमारी का नाम मंगोलिज्म में रखा गया. टंग प्रोट्रूडिंग टुवर्ड्स आउटसाइड, जीभ बाहर की ओर निकला हुआ होता है, देख रहे हैं आप. टंग प्रोट्रूडिंग टुवर्ड्स आउटसाइड एंड फेस अपीयर्स लाइक मंगोल्स एंड नोज जस्ट फ्लैट, नोज फ्लैट होता है. और फेस जो मंगोलों के तरीके से दिखाई देता है. स्टंटेड ग्रोथ, बेसिकली इनका ग्रोथ रुक जाता है. जेनेटिकल डिसऑर्डर भी हो जाता है. देखिए लिखा हुआ है डाउन सिंड्रोम, ध्यान दीजिएगा. डाउन सिंड्रोम इज अ जेनेटिकल डिसऑर्डर caused when abnormal cell division results in an extra full or partial copy of chromosome 21. 21 पेयर में एक क्रोमोसोम का बढ़ जाना, that is trisomy 2n+1, and this extra genetic material causes the developmental changes and physical feature of Down syndrome. और डाउन सिंड्रोम का कारण बन जाता है ये. इसमें जो है लाइफ स्पेन मैक्सिमम 16 years, sexually retarded, mentally retarded, physically retarded, or tongue protruding towards outside. These are the common features of Down syndrome children, which happens due to the trisomy 2n+1 in the 21st pair of chromosome. तो 21st पेयर में ट्राइसोमी हो जाने से यहाँ पर आप देख रहे हैं डाउन सिंड्रोम हो जाता है. इसमें मंगोलों के तरीके से फेस अपीयर हो जाता है. नोज वगैरह स्टंटेड हो जाते हैं, ग्रोथ रुक जाता है, नोज फ्लैट हो जाते हैं, मेंटली और फिजिकली रिटार्डेड होते हैं, और
ऐसे लोग जो है मंगोलों की तरीके के दिखाई देते हैं फेस इनका, इसीलिए डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी कहा गया है। चिल्ड्रन बिसाइड डाउन सिंड्रोम वी हैव डिस्कस्ड 3 मोर autosomal disorder, autosomal aberrations, which are Patau syndrome, in which trisomy takes place in 13th pair of chromosome. पटाउ सिंड्रोम में मैंने आपको पॉलीडेक्टाइली बताया था, इसमें मोर देन 5 फिंगर्स, 5 से ज्यादा उंगलियां हो जाती हैं एक ही हाथ या एक ही पैर में, दैट इज पटाउ सिंड्रोम। और इस स्पेशल फीचर को बोलते हैं पॉलीडेक्टाइल्स। तो एडवर्ड सिंड्रोम भी पढ़े थे आप ऑटोसोमल डिसऑर्डर में। एडवर्ड सिंड्रोम में 18वें पेयर पे ट्राइसोमी होता था बच्चों, 2n+1, एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है और जिसकी वजह से दिल में सुराख या आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट हो जाता है। और जबकि चौथा ऑटोसोमल डिसऑर्डर आपने देखा क्राइडू-चैट या कैट-क्राई सिंड्रोम, जिसमें 5वें पेयर में, क्रोमोसोम के 5वें पेयर में मोनोसोमी हो जाता है, 2n-1 हो जाता है और क्रोमोसोम के एक घट जाने से टोटल 45 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। और ऐसे बच्चे कैट की आवाज में रोते हैं, मियाऊ मियाऊ की आवाज में रोते हैं, इसीलिए इस बीमारी का नाम रखा गया कैट क्राई सिंड्रोम। सो चिल्ड्रन, in autosomal aberration, in autosomal mutation, we have seen the Down syndrome, Patau syndrome, Edwards syndrome, and Cry-du-Chang. Now discuss about the sex chromosomal mutation. As we know that the 23rd pair of chromosome is XY in males and XX in female, and if the abnormalities occur in the sex chromosome, then it is said to be as sex chromosomal mutation. तीन हम लोगों ने सेक्स क्रोमोसोमल म्यूटेशन देखा है बच्चों, टर्नर सिंड्रोम, क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम और जैकब सिंड्रोम, जिसमें से टर्नर सिंड्रोम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पहले देख लेते हैं हम लोग। टर्नर सिंड्रोम, जिसमें हम लोगों ने देखा कि फीमेल फीटस के अंदर से एक एक्स डिलीट हो जाता है, जिसकी वजह से जीनोटाइप जो बनता है वो 44 प्लस एक्स 0 बन जाता है। और 44 प्लस एक्स 0 होने की वजह से नॉर्मल सेल्स जो होते हैं वो अफेक्टेड सेल में बदल जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर नॉर्मल सेल्स विद 46 क्रोमोसोम and the sex chromosome is XX, and here one X is deleted, affected, and the affected cell without any chromosome, तो वहाँ पर एक X क्रोमोसोम गायब है। देख रहे हैं बच्चों, the genotype will be 44 plus X 0, and in Turner syndrome we have seen, ये टर्नर सिंड्रोम जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कुछ मैस्कुलिन कैरेक्टर्स आ जाते हैं, सेक्स ऑर्गन्स आर कंप्लीटली एब्सेंट, आर पुअरली डेवलप्ड। इसके अलावा हम लोगों ने क्लीन फिल्टर भी देखा था। क्लीन फिल्टर्स में बच्चों जो फीमेल फीटस है, सॉरी जो मेल फीटस है, उनमें एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है, तो उनका जीनोटाइप हो जाता है 44 प्लस एक्स एक्स वाई, और एक एक्स फैक्टर आ जाने की वजह से उनके अंदर फीमेल्स कैरेक्टर्स आ जाते हैं। एंड दे आल्सो हैव इंटरेस्ट इन मेल्स, they do not have interest in females, they have interest in males. Okay, sexually sterile you can say. And third one is the Jacob syndrome you have studied, that is the criminal syndrome discovered by English scientist Patricia Jacob in the prisoners of England, in which one Y chromosome is being added and due to which some aggressive characters are appeared and said to be as criminal syndrome. So my dear kids, in this way in today's class we have just revised the principle of inheritance and variation for our UT2, and now please make your proper notes and revise all the things related to principle of inheritance and variation, Mendel's law and other laws related to genetics. And in the next class we shall try our level best to revise the next things related to our unit test 2. Thank you very much.